Welcome to this session, guys. This session is continuation of our previous session. So हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस किया था. So here we will discuss the remaining questions. Okay, let's try to understand this question. A balloon containing an ideal gas is initially kept in an evacuated and insulated room. Okay. So this is the system. This is balloon evacuated and insulated. So what is this? This is insulated. This is insulated and यहाँ पे क्या है? This is evacuated, that there is a vacuum. Okay. The balloon ruptures and gas fills the entire room. अब क्या होगा? बैलून दब जाएगा और इसके जो बैलून के गैस मॉलिक्यूल्स थे ये फ्रीली वैक्यूम में एंटर करेंगे, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू एट द एंड ऑफ एवर प्रोसेस. ओके, so let's try to write our first law of thermodynamic equation for this closed system. So we know that for this closed system we have del q minus del w. So here our system is what? So here our system is what? So here our system is this tank. Okay, so अच्छा टैंक पे है सिस्टम. टैंक इज़ आवर सिस्टम. दिस इज इंसुलेटेड. क्यू की वैल्यू कितनी होगी यार? दिस विल बी 0. एंड हियर वॉल्यूम इज़ व्हाट? वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट. वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट. So can I write the work done by the system will be what? 0. So here du equals to what? 0. Du equals to 0. It means u2 minus u1 equals to 0. That is u2 equals to u1, है ना. तो यहाँ पे क्या है? जब ये सिस्टम के अंदर ये बैलून बस्ट आउट करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली बाहर निकलेंगे, राइट, इनसाइड द सिस्टम. बट देयर विल बी नो हीट इंटरेक्शन and there will be no work done by the system or work done on the system. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार? T1 इक्वल्स टू T2. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा, राइट. इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज सेम, इंटरनल एनर्जी विल बी सेम. एंड फॉर इफ़ इंटरनल एनर्जी इज सेम देन टेम्परेचर विल बी सेम, वाइस वर्सा. अच्छा, अगर मैं इसकी इंथैल्पी चेक करना चाहूँ, सो हाउ वी डिफाइन DH फॉर एनी प्रोसेस? वी डिफाइन mCp dt, right. So here, or we define, so here H1 equals to how much? H2. Enthalpy will also remain constant. So this is our observation from the first law of thermodynamics. Let's try to visualize. Let's try to check the answer. The internal energy of the gas decreases from its initial value, but the enthalpy remains same before and after rupture. Okay, so here internal energy decreases. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. internal energy will remain constant. This statement is wrong. The internal energy of the gas increases from its initial value. It is wrong. Both internal and enthalpy of the gas remain same before and after rupture. Okay. Both internal energy and enthalpy of a gas decreases before and after rupture. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. I think enthalpy will also be same and internal energy will also remain same. So answer will be what? C part. Let's move to another question. Question number 29. So for cyclic, integral of del q minus del w is द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ. तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है यार. साइक्लिक इंटीग्रल इसका क्या होता है? del q minus del w. Cyclic integral is always 0. So answer is what? Answer is what? 0.
right? Okay, question number 30. Okay, let's try to understand this. The thermodynamic work is a path dependent except for an adiabatic process. ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का थोड़ा हम पीवी कर्व ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं. सो दिस इज़ पी, दिस इज़ वी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एडियाबेट ट्रेवल्स बिटवीन टू आइसोथर्म. अगर ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो एडियाबेटिक कहाँ से कहाँ आएगा यार? यहाँ से यहाँ आएगा नीचे. ओके, सो दिस इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस. अच्छा, थर्मोडायनामिक वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. अच्छा, और एडियाबेटिक के का क्या पॉइंट होते हैं? एक पॉइंट ये है, और इन एडियाबेटिक में डी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, राइट? सो इफ़ आई राइट द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, सो वी कैन राइट डी क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, राइट? तो डी क्यू यहाँ पे ज़ीरो है, सो दिस विल बी व्हाट, ज़ीरो माइनस डेल डब्ल्यू, और डी यू इक्वल्स टू हाउ मच माइनस डेल डब्ल्यू. अच्छा यार, ये डी यू जो है, इट इज़ हाउ वी डिफाइन दिस, एम सी वी डी टी, राइट? डी यू इज़ पॉइंट फंक्शन बट वर्क डन इज़ पाथ फंक्शन, है ना? तो इस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस जब जब रहेगा तब तब वर्क डन जो होगा, दिस विल बी व्हाट, अ पॉइंट फंक्शन, करेक्ट? वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन इन जनरल, बट जैसे ही मैंने ये फिक्स कर दिया कि दिस प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये चीज़ ज़ीरो हो गई यार? ये चीज़ ज़ीरो हो गई मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट, माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू only for adiabatic process. So I think the assertion is correct. It is always possible to take a system from a given initial state to a final state by performing adiabatic work only. Okay, यार देखो, जहाँ पे ये ओनली आ जाता है ना, ये थोड़ा सा खेल बिगाड़ देता है, ये गलत हो जाता है चीज़ें, राइट? अगर मुझे स्टेट 1 से स्टेट 2 में आना है, राइट, स्टेट 1 से मैं स्टेट 2 आना चाहता हूँ, V1 टू V2 आना चाहता हूँ, सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस. हम आइसोथर्मली भी आ सकते हैं यहाँ से, कांस्टेंट प्रेशर से भी आ सकते हैं यहाँ से, है ना? एडियाबेटिक से भी आ सकते हैं यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक से भी आ सकते हैं, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, राइट? सो दिस ओनली, ये यहाँ पे खेल ख़राब कर देगा. सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सो आंसर देख लो. आई थिंक A is true but R is false, so answer will be C part. Next question. Okay, question number 31. Assertion: though heat is added during a polytropic expansion process for which gamma is this, the temperature of a gas decreases during the process. Okay, so this is for heat addition in polytropic process. तो इसके लिए we know that the standard formula, ये रटा रहना चाहिए यार, Q is gamma minus n upon gamma minus 1 times what, W. ओके, और यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या रहती है, 1.4, एंड n की वैल्यू इट इज़ लेस दैन गामा एंड ग्रेटर दैन 1. अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू यार यहाँ पे रखूँ, राइट, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूँ, क्या आ जाएगा, Q इज़ 1.4 माइनस 1.3 अपॉन 1.4 माइनस 1 इंटू W. सो वी विल गेट Q एज माइनस 2.25 टाइम्स W, करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे यार ये चीज़ क्लियर है क्या? अगर Q की जितनी भी वैल्यू रहे, राइट, लेट्स टेक W एज ए 100, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 25, करेक्ट? अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी कैन राइट दैट डेल Q माइनस डेल W, राइट? डेल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25, डेल W कितना होगा 100, सो आंसर कितना आएगा, -75. ओके,
So you can see here that there will be the change in internal energy for the polytropic process. For a polytropic process there will be change in internal energy. Okay, so इसका ये क्या है reason? The work done by the system exceeds the heat added to the system. Yes, work done ज़्यादा रहेगा और heat addition will be कम. So दो तो इतना temperature of the gas decreases during this process. Yes, in polytropic process internal energy will decrease, so temperature of the system will decrease. and ये decrease क्यों करेगा? The work done by the system exceed the heat addition to the system. Yes, exactly correct. तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा. So both explanation are correct. So answer will be what? A part. So move to next question. Okay, this question 32. Consider the following statement: calorically perfect gas has constant specific heat. Yes, in case of ideal gases we have Cp की वैल्यू कांस्टेंट एंड Cv की वैल्यू कांस्टेंट रहती है यार. ओके, एग्जांपल्स ऑफ CpIGs include noble and monatomic gases, helium, argon, nitrogen over a wide range of temperatures and pressure. Yes, so just Cp and Cv की वैल्यू ये वाइड टेम्परेचर रेंज में रहती है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें फॉर मोनोटॉमिक ऐसा वेरिएशन होता है C वर्सेस टेम्परेचर, ये डिफरेंस R रहता है. एंड फॉर दिस इज़ फॉर मोनोएटॉमिक. एंड फॉर डायाट्राई के लिए क्या होता था? दिस इज़ हीट कैपेसिटी. सो यहाँ पे ये ऐसे मूव करता है. so this is what R, this is temperature. Correct. For calorifically imperfect gas O2 at to high temperature, ये एक रेंज में डिफाइन रहेगा. यस, Cp will be function of T. so आंसर will be what यार? तीनों स्टेटमेंट सही हैं. ओके, हाई टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यहाँ पे डायटोमिक में इट differs from temperature 300 Kelvin to 6000 Kelvin. So if you check this 300 Kelvin 273 इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, so it will become near to the room temperature. रूम टेम्परेचर से 6000 केल्विन तक जाएगा. yes, this is also correct. so answer will be what यार? all threes are correct. so answer will be what? C part. let's move next question. Okay, question number 33. If same amount of heat is supplied to a gas during constant pressure, constant pressure जैसे ही बोलता है दिमाग में ये ग्राफ बनना चाहिए. this is P, this is V, and this is what? constant pressure from volume V1 to V2. this is what? P0. then the maximum work is obtained if gas is okay. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोल रहा है तो जस्ट राइट और इक्वेशन. तो कांस्टेंट प्रेशर में और बोल रहा है कि हीट द अमाउंट ऑफ हीट इज़ सप्लाइड टू अ गैस ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस सेम अमाउंट. तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. और डेल डब्ल्यू को अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ दिस, सो डेल क्यू माइनस डी यू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, so this will be what? m cv dt, right? dq माइनस m cv की वैल्यू क्या होती है यार? गामा के टर्म में r अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी. सो यू कैन सी हियर कि w को अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा यार? इस चीज़ को मुझे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को, राइट इसको मिनिमाइज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा यार? गामा की वैल्यू को मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा. सो वी नो गामा इक्वल्स टू 1/2/f. f की वैल्यू 356 होती है फॉर मोनो डाइट्राई, राइट. तो गामा को मैक्सिमाइज़ करने के लिए गामा मैक्सिमम कब रहेगा? जब f मिनिमम रहेगा, f मोनो पे मिनिमम रहेगा, राइट. तो सो आई थिंक मोनो आंसर विल बी व्हाट?
मोनोएटॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाइस। Okay, let's try to understand this question. Consider the following statement for an ideal gas which expands, सीधे अपन PV कर्व पे आएंगे, which expands isothermally from volume V1 to V2 from 5 liter. This is 5 liter. This is how much? 10 liter. At 30 degrees Celsius, this is 30 degrees Celsius, the change in enthalpy will be a non-zero positive value. Okay, let's try to see this. So अगर मैं isothermal के लिए first law of TD लिखूँ, so this will be del Q minus del W, और यहाँ पे क्या होता है, du की वैल्यू अपनी ज़ीरो हो जाती है आइसोथर्मल में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, हाउ वी डिफाइन इंथैल्पी? वी डिफाइन इंथैल्पी एज H इक्वल्स टू U प्लस पी वी। H इक्वल्स टू वॉट? U प्लस पी वी, है ना। अच्छा, अगर मैं डेल्टा H डिफाइन करूँ, डेल्टा H फॉर प्रोसेस 1 to 2, सो ये क्या होगा यार, H2 माइनस H1. So what we can write, U2 plus P2V2 minus U1 plus P1V1. अच्छा, इंटर एनर्जी कांस्टेंट है यार, तो ये क्या हो जाएगा, U1 इक्वल्स टू U2. सो यहाँ पे क्या होगा, ये कटेगा, इससे कटेगा, करेक्ट। और दिस इज़ व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस. सो कैन आई राइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1V1 इक्वल्स टू P2V2. ये इससे कटेगा, तो चेंज इन इंथैल्पी विल बी व्हाट, ज़ीरो. डेल्टा H विल बी व्हाट, H2 माइनस H1 इक्वल्स टू ज़ीरो. दिस विल बी व्हाट, H1 इक्वल्स टू H2. एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन एंथैल्पी विल बी ए नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू. यार नॉन ज़ीरो नहीं रहेगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, है ना. फॉर एन आइडियल गैस, U इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, विच मीन्स दैट द इंटरनल एनर्जी वेरीज लीनियरली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट इंथैल्पी इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इंथैल्पी इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर in case of ideal gas. Enthalpy is also function of temperature in ideal gas. So this statement is wrong, this statement is wrong. So answer will be what, D part. Move to, let's try to understand next question. Select the correct statement. Free expansion is highly irreversible process. यस, अगर फ्री एक्सपेंशन में क्या रहता है, यहाँ पे गैसेस हैं एंड दिस इज़ इवैक्यूएटेड, और मैं कुछ देर में इस लिड को हटा दूंगा, ये क्या होगा, ये सारे गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव करेंगे, है ना. सो दिस प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल. यस, दिस इज़ करेक्ट. In free expansion, the boundary of a system is movable. नो, बाउंड्री तो यार ये है, बाउंड्री फिक्स रहेगी, ऐसा कुछ नहीं मूव करने वाला. ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है, राइट. सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, बाउंड्री इज़ नॉट मूवेबल. ओके, इन फ्री एक्सपेंशन इज़ different from other thermodynamic process as it is an uncontrolled and instantaneous change. Yes, यहाँ this is uncontrolled and instantaneous change, क्योंकि हम लोग ये इसको फट से ये बीच का ये पार्टीशन हटाते हैं यहाँ से. Since the initial and final temperature are same, the free expansion process is isothermal. This cannot be plotted on PV diagram. Okay, so if we write the first law of equation for this process,
ओके, तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, कोई वर्डन नहीं हो रहा है, तो U2 इक्वल्स टू डेल्टा यू विल बी वॉट 0, मीन्स U2 इक्वल्स टू U1, है ना। यहाँ पे कंसेप्ट क्या रहता है यार, दिस इज़ वॉट U1, दिस इज़ U2, राइट। ये तो टेम्परेचर यहाँ का इनिशियल और फाइनल T2 इक्वल्स टू T1 होता है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होता है, बट ये प्रोसेस थोड़ा ऐसे जाता है, टेम्परेचर पहले डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा, राइट। सो U2 T2 इक्वल्स टू T1, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, बट पूरे प्रोसेस में पूरे प्रोसेस में ये पूरे प्रोसेस में ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही फ्री एक्सपेंशन में कांस्टेंट रहता है, राइट। सिंस द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज आइसोथर्मल। नो नो नो, जस्ट ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट एट ऑल द पॉइंट्स दिस टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर पहले डिक्रीज़ करेगा देन इंक्रीज़ करेगा, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, this statement is wrong, answer is A and C, this is also wrong. Okay, good. So move to next question. Okay, let's try to understand this question. 37, the condition before and after expansion of a triatomic ideal gas. ट्राइएटॉमिक जैसे ही बोला दिमाग में क्या आना चाहिए, गामा इक्वल्स टू 1+2/f, एफ़ की वैल्यू होती है 3, 5, 6 फॉर मोनो, फॉर डाई, फॉर ट्राई। आइडियल गैस गिवन बाय T1 L1, expansion, the condition before and after expansion of a triatomic gas is given by T1 L1 and T2 L2, where T2 are temperature before and after expansion, L1 and L2 are the length of the gas column before and after expansion. Okay, the expansion takes place adiabatically. Okay, तो यार टेम्परेचर तो T इज़ द टेम्परेचर, ये तो क्लियर है। ओके, L1 करस्पॉन्ड्स टू वॉट, लेंथ ऑफ द गैस कॉलम, है ना। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ कितना होगा सिलेंडर का, πD²/4 इंटू L होता है, करेक्ट, L1। तो L1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करेक्ट। अच्छा, मेरे पास क्या ऐसा कोई रिलेशन है जो टेम्परेचर और वॉल्यूम को कनेक्ट करे? वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द रिलेशन T2/T1 इक्वल्स टू हाउ मच, V2/V1 की पावर गामा-1, है ना। सो दिस इज़ आवर रिलेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द लेंथ, द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस एडियाबेटिकली। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द कंसेप्ट। सो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, L2 हो जाएगी। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, L1 हो जाएगी। दिस विल बी वॉट, L1। और इट इज़ फॉर विच, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक के लिए कितना होगा, 1+2/6। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 2 3 6, 4/3। So it will be what, 4/3 minus 1, 1/3 T2/T1, है ना। Solve this, what we are getting, we are getting L1 T1 की पावर 3 इक्वल्स टू L2 T2 की पावर 3, T2 की पावर 3। So which option will be correct? Not this, not this, this will be the final answer. Let's move to the another question. Okay, the question number 38, the work done on a closed system is 20 kg. So system ये है, work done on a system, so it will be what, work done on the system, work done on the system कितना लेते हैं हम लोग, -20 किलो जूल पर kg, and 40 kg heat is rejected from here. So Q कितना हो जाएगा यार, -20 किलो जूल पर kg। द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाई, सो कैसा रिलेशन है, सिंपल है यार, du इक्वल्स टू
डी क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ओके, तो हीट कितना है, दिस इज़ -40 एंड दिस इज़ व्हाट -20। ओके, तो कितना हो जाएगा, -40 -20, हाउ मच, -20 किलो जूल पर के जी। आई थिंक किलो जूल पर के जी है ना, राइट आंसर विल बी व्हाट यार, -20। सिंपल क्वेश्चन हैं यार सारे। ओके, heat transfer to a closed system at constant volume is equals to, okay, a constant volume, just first draw this on PV curve. This is P, this is V, this is what volume is constant। expansion कहाँ, heat addition हो रहा है इसमें from P1 to P2। in case of isochoric process or constant volume we can write du equals to del q minus del w। अच्छा यार, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पी डी वी होता है और चेंज इन वॉल्यूम इज़ व्हाट, ज़ीरो, दिस विल बी ज़ीरो। हीट ट्रांसफ़र इन ए क्लोज सिस्टम, देन दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। करेक्ट, तो हीट ट्रांसफर टू क्लोज सिस्टम इक्वल्स टू व्हाट, increase in internal energy, right? So answer will be what, B part। come to next question, which among the following is not boundary phenomena? Okay, work is a boundary phenomena। so what we define work हमेशा बाउंड्री से आता है या जाता है, राइट, एंड हीट ऑल्सो बाउंड्री से आती है या जाती है। वर्क एंड हीट आर द बाउंड्री फिनोमेना। मास ट्रांसफ़र इज़ नॉट बाउंड्री, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, मास ट्रांसफ़र, लेट्स सी दिस मास ट्रांसफ़र यार। इन केस ऑफ ओपन सिस्टम वहाँ पे क्या होगा, मास इधर बाउंड्री से आएगा एंड मास इधर बाउंड्री से आउट होगा। ओके, मास इज़ आल्सो बाउंड्री से आउट होगा, राइट। सो मास इज़ आल्सो अ बाउंड्री फिनोमेना, चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पॉइंट फंक्शन। तो आंसर ये सारे स्टेटमेंट सही है, बट दिस which is not a boundary phenomena, so this change in temperature is not a boundary phenomena। D option will be the right answer। okay, so which among of the following is not true? Heat and work transfer are energy interaction। heat and work transfer or energy interaction, yes, both are mode of heat transfer। heat and work both are mode of energy transfer। both heat and work transfer are path function and are exact differential। path function तो हैं ये, but this is what, inexact differential। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। this statement is wrong। heat transfer is the energy interaction due to temperature difference only। yes, Q equals to mc delta T। work and heat transfer are boundary phenomena। yes, this statement is correct। so all these statements are correct, this statement is not correct। so answer not का पूछ रहा है, answer will be what, B part। next question, work done is zero for the following process। work done is zero for the following process। yes, so we already know in case of constant volume process ये ऐसे मूव होता है, यहाँ पे वर्क डन विल बी व्हाट, ज़ीरो, this will be 0 because delta V change in volume is 0। and in case of free expansion यहाँ पे गैसेस हैं, ये लिड उठा दी जाती है, देन गैसेस का मूवमेंट होता है। here also there is no burden on the system। there is a one process, the throttling में
यहाँ से भी ये वाल्व उठाया जाता है, देन H1 इक्वल्स टू व्हाट, H2 रहता है. दिस इज़ फॉर ओपन सिस्टम. सो all these processes the work done is zero. Answer will be what, D part. Let's come to question number 42. ओके, इन फ्री एक्सपेंशन W12 इज़ ज़ीरो. सो फ्री एक्सपेंशन में क्या रहता है यार, एक सिस्टम रहता है, पार्टीशन रहता है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल रहते हैं और हियर वैक्यूम रहता है. देन हम लोग इस लिड को ओपन करते हैं, गैस मॉलिक्यूल अंदर मूव करेंगे, है ना. देयर विल बी नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. सो दिस विल बी करेक्ट एंड दिस सिस्टम इज़ व्हाट, इंसुलेटेड. सो दिस हीट विल ऑल्सो बी ज़ीरो. अच्छा, अगर डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये ज़ीरो, तो डी यू विल ऑल्सो बी ज़ीरो. दिस विल बी ज़ीरो, ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट द स्टीमिंग ऑफ फूड इन अ प्रेशर कुकर. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास. प्रेशर कुकर में क्या रहेगा यार, नीचे से अपन हीट देंगे, है ना, बट इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है. प्रेशर ये इंक्रीज़ होता जाता है. प्रेशर अगर मैं इसका पी बनाऊँ, है ना, प्रेशर इसका इंक्रीज़ होता जाएगा फ्रॉम प्रेशर पॉइंट P1 टू P2, बट वॉल्यूम ऑफ दिस कुकर विल रिमेन कांस्टेंट. सो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसका नाम है प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, बट नो गाइस, वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड. सो इट विल बी व्हाट, isochoric process. In cyclic integral, del q minus del w for a process is the cyclic integral of del q minus del w for a process. Yes, so we have already learned that this value for a cyclic process becomes what, 0. Heat transfer to a closed stationary system at constant volume is equals to, okay, तो सिंपल क्या करना है, डी यू इक्वल्स टू माइनस डे क्यू माइनस डेल डब्ल्यू लिखना है. कांस्टेंट वैल्यू में ये ज़ीरो होगा. क्लोज स्टेशनरी सिस्टम में हीट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी. आंसर विल बी पार्ट 45. द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग अ प्रोसेस. सो डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डी वी इज़ एप्लीकेबल फॉर. तो हम लोगों ने इसको कैसे किया था यार, दिस वॉज फॉर अ क्लोज सिस्टम, दिस वॉज सिलेंडर, दिस इज़ आवर पिस्टन. ये ऊपर मूव करेगा, हर एक मोमेंट पे फोर्स बैलेंस होता है ना. सो इसके लिए क्या क्या अजम्पशन लगेंगे. सो फर्स्ट अजम्पशन इज़ क्लोज सिस्टम. सेकेंड अजम्पशन, इस प्रोसेस के डेरिवेशन में फोर्स बैलेंस हो रहा था. सो दिस इज़ व्हाट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. बहुत ही स्लो होता है ये, इनफाइनेटिज्मली स्मॉल स्टेप में मूव होता है. एंड दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस वी हैव अज्यूम्ड. सो दिस इज़ व्हाट, फ्रिक्शनलेस. एंड हाउ वी डिफाइन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. Reversible process is defined as quasi-static plus frictionless process, right? So this equation is valid only for reversible process. Move to next question. A paddle wheel used for stirring a liquid contained in a tank, okay, contained in a tank supplied 5,000 kg of work. Okay, so this will be what, W will be 5,000 kg. अच्छा, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, राइट. A paddle wheel used for stirring a liquid contained in a tank supplied 50 kg of work, and during the stirring operation the tank lost heat removed from the gas from the tank will be how much, 1500 kg.
of heat to the surrounding. If the tank and liquid are considered, tank and liquid ये पूरा as a considered as a closed, this is the closed system now, considered as a system, the change in internal energy will be, तो सिंपल यार अपन को अपनी इक्वेशन लिखनी है du इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्लू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है एंड दिस इज़ 15,000 15। अच्छा यहाँ पे डेल डब्लू होता है, दिस इज वर्डन बाय द सिस्टम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्डन ऑन द सिस्टम, सो दिस विल बी व्हाट -5,000 सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 प्लस 5,000, सो इट विल बी हाउ मच यार 3,500 किलो जूल। सो व्हाट विल बी द आंसर विल बी बी पार्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, very nice question. We have already discussed this question in the class, so let's again understand which of the following statement hold good for the equation dq equals to de plus dw. So we can write in our format del q minus del w, है ना। So what was the condition for this equation? The moment I write del w equals to पी डी वी, तो ये किस में होता था, क्लोज्ड रिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल में क्या होता था, क्वासी स्टैटिक प्लस फ्रिक्शनलेस, ठीक है, ये इसके अजम्पशन थे। बट दिस प्रोसेस, दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेस एंड फॉर द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिस्टम। ओके, so and reversible, irreversible, closed or open, so this equation is valid for, answer will be what, B part. So this is the very fundamental question here. Okay, question number 49. Okay, it is desired to bring about a certain change in a state of a system by performing work on a system under adiabatic condition. Under adiabatic condition में क्या है, सबसे पहले PV कर्व ध्यान में आना चाहिए। एडियाबेटिक में कैसे करते हैं, एडियाबेटिक ऑलवेज ट्रेवल्स बिटवीन टू आइसोथर्म, सो दिस इज़, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ओके, और ये टेम्परेचर का है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर मूव होगा, दिस इज़ टेम्परेचर T1, दिस इज़ टेम्परेचर T2, T2 इज़ हायर दैन T1, ठीक। अच्छा, ये क्लियर है इस एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में और क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, ठीक है। सर्टेन चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, तो ये हो गया, सपोज ए से बी आ रहा है ये एडियाबेटिक में। तो लेट्स राइट आवर इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट गिव्स डेल क्यू माइनस डेल डब्लू। अच्छा यार, यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो डी यू कितना होगा, माइनस डेल डब्लू। The amount of work needed is part dependent. Okay, the work alone cannot bring about such a change of state. Okay, the amount of work needed is independent of path, Okay, more information is needed to conclude anything about path dependency, otherwise of the work needed. Okay, so we have already discussed, I think in case of adiabatic, this is a path function and this becomes equals to what, change in internal energy, और ये क्या होता है यार, it depends on the temperature change, so this is what path function and this is what point function, right? The amount of work needed is path function, yes it is path function, but in adiabatic ये क्या हो जाता है, इन एडियाबेटिक द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, है ना, ये जस्ट पॉइंट फंक्शन हो जाता है इन केस ऑफ एडियाबेटिक, सो आंसर विल बी व्हाट, सी पार्ट। इट इज़ इन ये स्टेटमेंट तब सही होगा ओनली इन एडियाबेट, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड इज़ पार्ट डिपेंडेंट, दिस इज इन जनरल।
Okay, move to next question. Question number 50. An insulated rigid vessel contains a mixture of insulated rigid vessel. ये rigid है means volume is constant and it is insulated. A mixture of fuel and air. Mixture is ignited by a minute of spark. यहाँ पे spark होता है और ये blast होता है, right? The content of the vessel experience. Okay, based on this system, let's write the जनरल फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन. अच्छा, इंसुलेटेड है, क्या होगा यार, हीट ज़ीरो होगा. ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्डन कितना होगा, ज़ीरो होगा. दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जब ब्लास्ट होगा टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होगी इसमें, करेक्ट. ओके, सो दिस विल बी द केस. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द पार्टिकुलर केस. इन जनरल हम लोग की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, राइट. ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो एनर्जी विल, टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, टोटल एनर्जी विल बी सेम. एंड दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ के ई प्लस पी ई प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस अदर सेंसिबल एनर्जी, राइट. यहाँ पे क्या होगा, सेंसिबल एनर्जी बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट ओवरऑल और भी प्लस जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सबका कॉम्बिनेशन रहता है. ये ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इन द सिस्टम, E1 इक्वल्स टू E2. सो आंसर विल बी व्हाट यार, सी पार्ट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The first law of thermodynamics takes the form of W equals to minus delta H when applied to, okay, closed system undergoing reversible adiabatic process, no. In open system undergoing adiabatic process, closed system reversible constant volume process, no. Closed system reversible constant pressure process. Constant pressure process में क्या होता है, okay, let's try to visualize. Constant pressure में first law of thermodynamics taken the form of कांस्टेंट प्रेशर में डी यू इक्वल्स टू माइनस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू डेल क्यू माइनस पी डी वी. ओके, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता. कांस्टेंट प्रेशर में तो डब्ल्यू ऐसा डिफाइन होता है. ओके, सो एक्चुअली गाइस दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द ओपन सिस्टम. वी विल अगेन डिस्कस दिस क्वेश्चन in the session of open system. So this change in enthalpy is not the word in closed system. Okay, we will again discuss this question, don't worry. Okay, question 50. A steel ball of mass m1 is given here. Let's take this. m1 is 1 kg. Specific heat Cp1 is 0.4 kg kilojoule per kg per Kelvin. Is at temperature of T1 is 60 degrees Celsius. It is dropped into 1 kg of water. M2 is 1 kg at T2 की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस. द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज़, ओके, एंड ये T2 की वैल्यू पूछ रहा है. T2 वाटर का मतलब सॉरी T1 इतना है. द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर T फाइनल इट इज़ आस्किंग. और Cp वाटर हम वी ऑलरेडी नो दैट इज़ इट इज़ हाउ मच, 4.18 किलो जूल पर kg केल्विन. ये वैल्यूज़ हमें पता है. सो दिस इज़ सिंपल. वी नो दैट Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, है ना. स्टील बॉल को, अगर स्टील बॉल है, ये वाटर है, इसमें मैंने स्टील बॉल को डाल दिया, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कितना है इनिशियली, 60 डिग्री सेल्सियस. वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा यार, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, बॉल का, वाटर का इंक्रीज़ होगा. तो क्या होगा यार, यहाँ पे टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉल इक्वल्स टू व्हाट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो वी हैव टू राइट ओनली दैट हीट ट्रांसफर इक्वेशन M1 C1P equals to what,
decrease in temperature 60 minus T final equals to what? Increase the temperature of water into T final minus T initial. कितना है यार? 20 डिग्री सेल्सियस. Just put the all values and you will get T final as 23.50 degrees Celsius. So it will be what? Answer A. Move to this question. Okay, question number 53. Okay, let's solve some simple questions. I will come to this point. For a reversible adiabatic compression in a steady flow process, the work transfer per unit mass is. So actually this is, so we know that del W equals to integral P dV. This is for closed system, but dW equals to integral minus V dP. This becomes for open system. So this will be, actually this is steady state flow process. This is open system. Answer will be what? B part. The specific heat of an ideal gas depend on its specific heat of an ideal gas depends on, so Cp or Cv ये किस पे डिपेंड करता है यार? It depends on what? Gamma. Correct. So how we define that? We define Cp as gamma R upon gamma minus 1 and Cv as R upon gamma minus 1. Cp minus Cv value or what? R, right? And how we calculate R? We calculate, this is what? Characteristic gas constant. This is defined as what? R bar. This is universal gas constant 8.314. M is what? Molecular weight of a gas, right? So this is what it is. Answer will be what? D. The specific heat of ideal gas depends on its, I think ये repeat है क्या? Okay. So the answer will be what? D. Reversible continue 3 process. Okay. Let's see this question. So let's try to match the options. Okay, group 2, group 1. Okay, match items from group 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so let's take E. When added to the system is, if we are taking added, अगर heat को add करते हैं, heat addition is taken as positive, heat rejection is taken as negative. E, so this is positive. Okay, differential is what? Heat is what? This will, ये कितना हो जाएगा? G हो जाएगा ये. Heat is what? Inexact differential. And function, heat is what? Path or point. Heat is what? I think point. No. Heat is what? Path function. It does not depend on the point, it depends on the path. Phenomena, it is what? Heat is transient, heat is boundary. Yes, heat is boundary phenomena. Okay, so we have EGKN, EGKN. I think EGJKN. Okay, work का देखते हैं यार. Work when added to the system, then ये क्या हो जाएगा यार? ये निगेटिव हो जाएगा H. अच्छा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि इनएग्जैक्ट? दिस इज व्हाट? इनएग्जैक्ट. then work is what? Path function, so it will be K. And work is what? This is boundary phenomena. So work is phenomena, work is boundary phenomena. It will be what? N. So FHJKM
Okay, JKM. Okay, so here phenomena we already know that heat and work are the boundary phenomena and these are in transit state. Transient लिखा है यार. If it is corresponding to transit state, so it will be correct, but it is not. That heat is not stored in a body, neither work is stored in a body. Or I think अपना option A is correct. This one is correct. So maybe कुछ ऑप्शन का इसमें झमेला है, but we will go with option D. So we already know that heat and boundary are the transit phenomena and it is a boundary phenomena both. Okay. Okay guys, और कौन से सिंपल वाले हैं? A balloon containing ideal gas initially kept and evacuated an insulated room. So I think ये अपन ने already discuss कर रखा है. So we have already discussed. So in case हम लोगों ने हमें क्या मिला था, U1 equals to U2 and H1 equals to H2. We got H1 equals to H2. So we have already discussed this question. I think in this video or earlier video just before that we have discussed this. Sorry. C option will be there. Both internal energy and enthalpy of the gas remain constant. Okay, let's see this question. The molar specific heat at constant volume of an ideal gas, so it is giving Cv equals to 2.5 times universal gas constant. Okay, R bar की वैल्यू दे रखी है. When the temperature increase by 100 K, the change in molar specific enthalpy is. Okay, so this is defined as a constant volume is molar specific heat, right? So we are defining like this for molar specific heat. So this is molar specific heat. So this is 2.5. So if I calculate, अच्छा यहाँ पे R बार की वैल्यू क्या होगी? It is in mole है ना, तो we are writing this in terms of molar. So Cp minus Cv bar, we know that this is equals to R bar. यहाँ से Cp की वैल्यू कितनी निकल आएगी यार? It will be 3.5 times R bar. Okay. अच्छा, now molar specific enthalpy change, it will be defined as delta H n Cp bar delta T. Okay, and Cp bar delta T, and here everything is defined in terms of per unit volume, per unit mole. We will take n as a 1 mole, so it will be what? Molar head capacity will be Cp bar into delta T. So Cp bar की वैल्यू कितनी है? It is 3.5 into 8.314 गुणे delta T is how much? 100. So this will be 2909.9 kilojoule. So this will be the answer. So this will be what? Kilojoule per kilojoule per kilomole or joule per mole. So this will be the answer. So कितना हो गया? Okay, so this is the last question. ये हो गया gauge pressure which okay, I think this is connected question है क्या? Yes. Okay, so let's try to understand this question. A football was inflated to a gauge pressure of 1 bar. Okay, 1 bar equals to 100 kilopascal. When the ambient temperature was T is 15 degrees Celsius, when the game started next day, the air temperature of the stadium was, let's take 5 degrees Celsius. This is also ambient. Yeah, this is atmospheric.
5 डिग्री सेल्सियस, अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन कांस्टेंट, v की वैल्यू 2500 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो लेट्स the amount of heat lost by the air in football and the gauge pressure of air in the football at the stadium respectively equals to. Okay, so a football was inflated to a gauge pressure of 1 bar. अच्छा ये यार 1 बार दे रखा है, राइट. सो हम लोगों ने पढ़ा था अ फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 बार. तो फुटबॉल यहाँ पे था, इसको हवा भरी जा रही है एट 1 बार एट गेज प्रेशर. सो वी लर्न दैट पी वी इक्वल्स टू एम आर टी. यहाँ पे पी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? पी इज़ ए एब्सोल्यूट प्रेशर. पी इज़ ए व्हाट? पी इज़ ए टोटल प्रेशर. पी वाज हियर, यहाँ पे जो प्रेशर होता है दिस इज़ टोटल प्रेशर. इट इज़ पी गॉज प्लस पी एटमॉस्फेरिक. तो यहाँ पे पी गॉज कितना है यार? पी गेज इज़ हाउ मच? इट इज़ 1 बार और 100 किलो पास्कल और 100. अच्छा, पी एटमॉस्फेरिक कितना हो जाएगा यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑलवेज 101.32 kPa. तो पी टोटल कितना हो जाएगा यार? ये पी टोटल will be 201.32 किलो पास्कल. ओके, और मेरे पास वॉल्यूम इसको फिक्स दे रखा है, राइट. और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T1 पहले दिन का, दूसरे दिन का टेम्परेचर कितना रहेगा? T2 रहेगा. ओके, सो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट what is the mass of what air when the game okay, so here we have pressure, total pressure we have temperature value, right. So by using this P1 V1 equals to MRT1, we know the R value also, R value for air. Let's try to calculate mass of air initially. So it will be how much? P1 201.325. it will be in kilopascal into V is how much? keep volume in meter cube. ये कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R फॉर एयर इज़ 0.287 इंटू T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T1 वी है 15 प्लस 273. यहाँ से M की वैल्यू कितनी आएगी यार? just do the calculation. We will get 6.089 into 10⁻³ kg. ठीक है. so this is mass of the air, amount of heat loss by the air in the football and gauge pressure of air in the football at the stadium respectively. okay, तो मुझे यहाँ पे मास मिल गया. So can we calculate now? Let's write the energy balance equation for this process. So we will get this. अच्छा यार, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वॉल्यूम is going to remain constant. Just see here, वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगा तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. देन डेल क्यू की वैल्यू कितनी होगी यार? डी यू. दिस विल बी हाउ मच? एम सी वी डेल्टा टी. दिस विल बी हाउ मच? एम सी वी डेल्टा टी. और मैंने अभी मास की वैल्यू निकाली है
it is how much? Let's see, 6.089 into 10 की power minus 3 kg, and CV for air, this should be given, this value will be given in the exam, don't worry. CV is 0.78. okay, so just remember R value for air 0.287 kilojoule per kg Kelvin. Okay, this is very important, 0.287 value kilojoule per kg Kelvin. So this will be CV. डेल्टा टी कितना हो जाएगा यार? यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी थी? डेल्टा टी, द चेंज इन टेम्परेचर, so it was 15 degree Celsius, then 15 will be 288, or 15, just do directly यार, 15 minus 5, डेल्टा टी की वैल्यू सेम आएगी. just do the calculation, we will get 43.7 joule. हीट की वैल्यू will be what? 43.7 joule. और ये पूछ रहा है कि amount of heat lost by air in the football and the gauge pressure of the air in the football at the stadium respectively. अच्छा, अब ओके, सो इस प्रोसेस में क्या है यार? देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट, सो फ्रॉम पी वी इक्वल्स टू आर टी कैन आई राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ कि P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. तो P2 we calculate P2, this will be total pressure, this will be how much? T2 by T1 into P1. तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी यार इसकी P2 की? just do the calculation. so here we get P2 value as 194.33 kPa. ये P2 की वैल्यू आएगी, बट दिस प्रेशर विल बी द टोटल प्रेशर. इधर स्पेस है क्या? ओके, सो दिस इज़ द टोटल प्रेशर. तो P2 इज़ डिफाइंड एज P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक. हमें P गेज 2 निकालना है, ठीक है? तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी P गेज 2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा यार? 101.32 kPa, and it will be equals to how much? 194.33 kPa. यहाँ से just solve the value for Pg2, you will get 93 kPa. तो gauge pressure we will get for how much? 93 kPa. Let's check the answer. 93 kPa or what? 0.93 bar. Okay, so answer will be what? D part. और यहाँ पे भी कुछ था क्या? Okay, this is the first. Gauge pressure of air to which the ball must have been originally inflated so that it would be equal to 1 bar gauge at the stadium. Okay, so यहाँ पे ये बोल रहा है कि the gauge pressure of the air to which the ball must have been originally inflated so that it would be equal to 1 bar gauge of the stadium is. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि P1 की वैल्यू we will take 1 bar, Pg1, let's take it Pg1, take this value at 1 bar. ओके, फिर यहाँ से Pg1 की वैल्यू 1 बार होगी. यहाँ से हमें P टोटल कैलकुलेट करना है. P टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? Pg प्लस P एटमॉस्फेरिक. यहाँ से क्या आ जाएगा यार? अपना P1 आएगा. नाउ इट्स वांट टू कैलकुलेट Pg2 कैलकुलेट करने को बोल रहा है ये, करेक्ट? सो लेट्स ट्राई टू डू हियर. Pg1 की वैल्यू कितनी है? 1 बार और 100 kPa, एंड P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी Pg1 प्लस P एटमॉस्फेरिक
this will be 100 plus 101.32. So this will be how much? 201.32 P1 in kPa. Okay, so we already have a T1 and T2 value. T1 is 5 degrees Celsius, T2 is I think 15 degrees Celsius. In Kelvin we can write this 278 and it will be 288 Kelvin. ओके अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू अपनी कांस्टेंट है, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग. सो कैन वी यूज़ द सेम कंसेप्ट दैट P2 इक्वल्स टू T2 बाई T1 इंटू P1. तो कीप put all the values here, we get the P2 value as 208.56 kilopascal. P2 की वैल्यू ये हो जाएगी. देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? Pg, गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है. सो दिस विल बी व्हाट? Pg2 प्लस P एटमॉस्फेरिक. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट Pg2 इक्वल्स टू 107.23 किलो पास्कल और 1.07 bar we will get. Let's check. The answer will be what? Answer will be C part. Gauge pressure of air. Okay, I think same है ना? Yes, the gauge pressure C part. So I think this question is done. So this is also done. और कौन सा बाकी है इसमें? और कोई है? ओके, एक ही क्वेश्चन है. लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. A reversible thermodynamic cycle containing only 3 process and producing work is to be constructed. Okay, reversible thermodynamic cycle containing only 3 process and producing work is to be constructed. The constant are there must be one isothermal. Okay, one isothermal, there must be one isentropic. Okay, the maximum and minimum cycle pressure and the clearance volume are fixed. Okay, P1, P2 and V1, V2 are fixed. And fourth, polytropic process are not allowed. Then the number of possible cycles are okay, एक आइसोथर्मल चाहिए, आइसेंट्रोपिक चाहिए. आइसेंट्रोपिक इट वुड बी व्हाट? एडियाबैटिक प्रोसेस. और P1 V2 कांस्टेंट है. ओके, लेट्स ट्राई टू विजुलाइज दिस प्रोसेस. तो ये क्या बोल रहा है कि इट नीड्स V1 V2 कांस्टेंट इसको चाहिए और P1 एंड P2 भी इसको कांस्टेंट चाहिए. राइट, सो लेट्स ट्राई टू सी कैसे कैसे प्रोसेस बन सकते हैं. अच्छा, एक आइसोथर्मल, एक वो चाहिए आइसेंट्रोपिक मीन्स पॉलीट्रोपिक. ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस यार. अच्छा, अगर मैं एक प्रोसेस बनाऊं कि यहाँ से यहाँ ये एडियाबैटिक ट्रेवल कर रहा है. ओके, एंड देन ये यहाँ से यहाँ आइसोथर्मल ट्रेवल कर रहा है. एंड देन यहाँ से यहाँ ये आइसोकोहरिक ट्रेवल कर रहा है. राइट, दिस इज़ व्हाट PV की पावर n और गामा, टेक इट गामा. दिस इज़ आइसोथर्मल PV. एक प्रोसेस तो यार ऐसा होगा. राइट, हमें पॉलीट्रोपिक नहीं करना है तो ये पॉलीट्रोपिक नहीं रहेगा. दिस विल बी व्हाट? PV की पावर गामा. एक प्रोसेस में ऐसा कर सकता हूँ दैट आई कैन कीप वन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एक ये होगा. ओके, लेट्स ट्राई मोर प्रोसेस. अच्छा, अगर मैं एक ये बनाया हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम तो मैं यार ऐसे भी तो कर सकता हूँ. एक कांस्टेंट प्रेशर कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट प्रेशर कर दूँ और उसके साथ एक आइसोथर्म और एक एडियाबेट कर दूँ इसके साथ. राइट,
एक कॉम्बिनेशन एक ये फॉलो हो सकता है इसमें फॉर पीवी कर्व, एक आइसोबेरिक। ओके, अच्छा ये तो ये यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहा था, ये प्रेशर भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था यहाँ पे। सो आई कैन डू द रिवर्स आल्सो, आई कैन डू रिवर्स हियर, कंटिन्यू ओनली प्रोड्यूसिंग वर्क, ये वर्क प्रोड्यूसिंग है, मेक श्योर दिस शुड बी व्हाट क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज होती है। तो अच्छा मैं इसको यार ऐसे भी तो बना सकता हूँ कि एक मैं कांस्टेंट, ये दिस इज़ व्हाट दिस इज़ पीवी की पावर गामा, दिस इज़ पीवी आइसोथर्मल। अच्छा अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ, प्रेशर कांस्टेंट ऐसा करूँ, सो दिस विल बी व्हाट पीवी की पावर गामा, और ये यहाँ से आएगा, दिस विल बी पीवी कांस्टेंट आइसोथर्मल। दूसरा यहाँ से बनेगा, एंड तीसरा मैं वॉल्यूम को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, है ना, सो इफ़ दिस प्रोसेस वी हैव टू फॉलो दैट इट शुड बी क्लॉकवाइज बिकॉज साइकिल इज़ वर्क प्रोड्यूसिंग। ये कौन सा प्रोसेस होगा, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल, और यहाँ से कैसे करेंगे यार, पी वी की पावर गामा, दिस विल बी व्हाट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं इसमें, दिस इज़ पी, दिस इज़ वी। तो टोटल जस्ट मेक श्योर कि हर एक प्रोसेस में इट इज़ व्हाट क्लॉकवाइज साइकिल और वर्क प्रोड्यूसिंग, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट यार, आंसर विल बी डी पार्ट। और कोई का क्वेश्चन बचा है क्या? ओके now come to this final question. Okay, let's try to solve this. A vertical cylinder with freely floating piston. Okay, freely floating piston means there is no friction containing, m की वैल्यू कितनी है, just write all the values sequentially. m is 0.1 kg at pressure is how much, 1.2 bar, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, इट विल बी 1200 किलो पास्कल। एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक रजिस्टर, द रजिस्टर इज़ वायर टू एन एक्सटर्नल 12 वोल्ट बैटरी। ओके, वी की वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ वॉट 12 वोल्ट। when a current of I की वैल्यू 1.5 एम्पियर is passed through a resistor for a delta t equals to 90 second, the piston sweeps a volume of, यहाँ से डेल्टा x होगा, डेल्टा v कितना हो जाएगा, a डेल्टा x। तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, डेल्टा v की वैल्यू है 0.01 मीटर क्यूब। अज्यूम पिस्टन एंड सिलेंडर आर इंसुलेटेड। ओके, ये पिस्टन भी इंसुलेटेड। ओके, अच्छा यार ये इंसुलेटेड है तो इससे हम क्या कंक्लूज़न निकालेंगे, इससे हम तो यही कंक्लूज़न निकालेंगे ना, सीधी बात, नो बकवास, सॉरी यार, डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्लू, राइट। तो यहाँ पे it is insulated, so can we write that delta q will be 0. Okay, so piston and cylinder are insulated, air behave as ideal gas, find the rise in temperature of air. Okay, so we have to find delta t of air, ये कितना होगा। ओके, डेल्टा टी, अच्छा डेल्टा टी ऑफ एयर कितना होगा। अच्छा मुझे पता है यार, ये रिलेशन क्लियर है अपन को, तो हमें क्या पता है डेल्टा यू कैसे डिफ़ाइन होता है यार, इट इज़ डिफ़ाइन एज एम सी वी डी टी, है ना। तो अगर मैं डेल्टा यू को कैलकुलेट कर लूँ एम सी वी डी टी, तो यहाँ से डेल्टा टी निकलता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे वर्क डन की टोटल वैल्यू चाहिए होगी, करेक्ट। सो इस केस में टोटल वर्क डन, इफ़ आई डिफाइन टोटल वर्क डन,
ये किससे किससे होगा यार, एक तो होगा जो वर्क डन बाई एयर होगा, है ना, और एक क्या होगा जो ये इलेक्ट्रिक हीटर वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक हीटर, राइट। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट डेल डब्ल्यू टोटल। वर्क डन बाई एयर कैसे हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, पी डेल्टा वी, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक हीटर दिस विल बी वॉट, वी आई डेल्टा टी, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी वॉट, ये क्या करेगा, वर्डन बाय द, ये वर्डन बाय द हीटर वर्डन ऑन द सिस्टम होगा, राइट। सो वी विल टेक दिस एज ए निगेटिव साइन, ओके। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। सो दिस विल बी हाउ मच, गुड, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना है यार, 0.01 मीटर क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 1.5, और टाइम कितना लगा रहा है डेल्टा टी सेकेंड, इट इज़ 90 सेकेंड, राइट। सो अच्छा यार, इसकी यूनिट कितने में आएगी, दिस यूनिट विल बी इन जूल, सो इफ़ आई डिवाइडेड इट बाई 1000 then it will come to in kilojoule, okay. Just do the calculation. So this will be how much, 12 minus, it will come at 1.6 kilojoule, so it will be what, 10 में जाएगा 4, 0 10, so this will be how much, 10.4 kilojoule, ये W की वैल्यू टोटल वर्क डन, राइट। सो इफ़ वी राइट फ्रॉम हियर, इफ़ वी राइट दैट डेल्टा U M C V डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस ऑफ, so this will be 1.6 kilojoule, and here I think it will be how much, this will be our 1.2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -0.4 किलोजूल, it will be -0.4 kilojoule, so this will be -0.4 kilojoule. So from here we know the value of mass, m की वैल्यू 0.1, cv की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ 700 जूल पर केजी केल्विन है यार, हाँ, तो ध्यान रखना इसको अपन को किलो जूल में फिर चेंज करना पड़ेगा, जूल पर केजी केल्विन, ओके। सो दिस इज़ व्हाट डेल्टा टी, एंड दिस इज़, अच्छा इसकी वैल्यू यार यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा यहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ डब्ल्यू टोटल, जब इस रिलेशन को मैं यहाँ पे रखूँगा, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट डी यू इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू टोटल, डेल्टा डब्ल्यू टोटल की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, इट इज़ माइनस टाइम्स, तो ये रखेंगे ये प्लस बन जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट -0.4 into 1000. So from here I think we can calculate the delta t value here. Just do the calculation and check it, we will get the delta t value from here. Find the rise in temperature, so this delta t it comes around 6 degrees Celsius. So please just check this, the whole concept is this, that this system is insulated, heat ज़ीरो हो जाएगी, we want to check measure the delta t, ये कैसे निकलेगा, we have to calculate delta w total कैसे निकलेगा, that we know यहाँ पे बाहर से बाउंड्री वर्क हो रहा है बाय इलेक्ट्रिक हीटर,
ये सिस्टम पे वर्क करेगा एंड सिस्टम विल डू सम वर्क on the surrounding. So this will be what displacement work. So we will get the displacement work plus work done on the system. यहाँ से अपन को total work मिलेगा and just we have to put this value in the first law of thermodynamics from here. So we will get the answer. Please check this, guys. Okay, check this carefully, the calculation. Please check this calculation very carefully. Okay, so I think all the questions we have completed. Okay, so nice. Okay, so I think we have calculated all the questions. Is there any questions missing? No. Yes, so okay, I think one question was missing that belongs to the open system. So this is all for objective session. We will do rigorous practice for conventional questions also in future videos. Okay, so thank you so much guys for watching this video. Okay, bye.